Good morning, students. Today, as we have finished History of Novel lesson, we will continue with the brainstorming activities. Because I have seen that though we have studied the lesson, but it was in fragments. So, better for you if you see all the videos in a continuation, it will be very much helpful to you. And so I guide you to go through those videos once again. Okay. Now, we will continue with the first activity. It is match the columns. First one, Murasaki Shikibu. Do you remember this one? Yes, he has written the novel Tale of Genji. Okay. Then second, novella. Novella means new. Okay. It is an Italian word which has the meaning new. Then third one, Don Quixote. Don Quixote means here Cervantes. Cervantes. Okay. Then Rajmohan's Wife, written by Bankim Chandra Chattopadhyay, who is an Indian writer, and he gets the credit of being first any Indian writer to write the novel. Then second activity, students, यहाँ पे क्या करना है हमें, तो pick out the odd element from the group. ठीक है, odd element हमें यहाँ से find out करना है. पहला यहाँ पे अरुण जोशी, ठीक है. देन है विक्रम सेठ, ग्रैहम ग्रीन और किरण नगरकर. यहाँ पे अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अरुण जोशी, विक्रम सेठ और किरण नगरकर, ये तीनों इंडियन नॉवेलिस्ट हैं. और ग्रैहम ग्रीन जो है, ही इज़ एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट. ओके. एंड सो ऑड वन इज ग्रैहम ग्रीन. देन place, period, theme, climate and lifestyle. Now here if you read carefully, you will find that place, period, climate and lifestyle are a part of setting. We have seen the elements of novel, and these four are the elements of novel from setting. Theme is another one, and so here the odd becomes theme. Okay, so theme is odd. Then here theme, plot, character, novella. If you look carefully, here theme, plot and character are the elements of novel, but novella, it is different one, and so here odd becomes novella. Okay students. Then नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द प्लॉट मे हैव आर. दो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होंगे. यहाँ पे पहला आएगा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट
a conflict that is going on within the mind of protagonist, that is called internal conflict. और दूसरा external conflict. Protagonist conflict or interaction with the other characters from the novel, that is called external conflict. So these are the two conflicts. समझ में आपको यहाँ पे पहला कौन सा यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. देन द वर्ड पिकारेस्क इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम. कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है? इसकी ओरिजिन हुई है पिकारो. अभी पिकारो जो है ये एक स्पेनिश वर्ड है. व्हाट इट इज़? पिकारेस्क जो है ये बना है पिकारो. इट इज़ अ स्पेनिश वर्ड. ठीक है, इट इज़ अ स्पेनिश वर्ड. और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अ रोग. ठीक है, a rogue. Rogue means here, a rogue means here a dishonest person. क्या होता है इसका मीनिंग? a dishonest person. Okay. Then the epistolary novel presents the narrative through. epistolary novel इसका मीनिंग है यहाँ पे the story is presented before the readers with some series of correspondence, okay, or other documents, for example letters or the diary entries. In this way the epistolary novel is presented. कैसे प्रेजेंट किया जाता है उसको? That is a series of correspondence or in the form of some documents. Then in the 18th century middle class could get the time for reading and discussing the novels. Because what is the reason? The reason is that there was the invention of machines. Okay, तो यहाँ पे लिखेंगे हम machines. तो मशीन से क्या होने लगा? यहाँ पे मशीन से ये होने लगा कि यहाँ पे the people they could get their work has become easy and they could get some time, and that relaxed time they could use for reading. Okay, तो यहाँ पे लिखना है the spread of machines. Okay, the spread of machines. And because of this spread of machines, what happens that the middle class got more time and it provided them spare time. अभी आगे की है स्टाइल ऑफ नॉवेल. आगे पार्ट कौन सा है यहाँ पे? स्टाइल ऑफ नॉवेल. तो स्टाइल ऑफ नॉवेल की एक जो है स्टाइल ऑफ नॉवेल मीन्स व्हाट? स्टाइल ऑफ नॉवेल मीन्स हियर द लैंग्वेज एंड टेक्निक दैट इज यूज्ड इन अ नॉवेल, दैट इज कॉल्ड स्टाइल ऑफ नॉवेल. यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि
आपको मैं पेज ही बता देता हूँ, वो वहाँ से आपको समझ में ज़्यादा बेटर तरीके से आएगा। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज और स्टाइल। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे द लैंग्वेज एंड टेक्निक, ये दिख रहा है आपको लैंग्वेज स्टाइल। द लैंग्वेज एंड टेक्निक्स यूज बाय द राइटर फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स इज नोन एज द स्टाइल। देन here an author can use extensive vocabulary or high phrases। extensive vocabulary यानी यहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से द कॉम्प्लेक्स या फिर द vocabulary which is of a lofty type, elevated type. So here the high phrases and extensive vocabulary that it would use. He may be laconic। अभी laconic का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? laconic का मीनिंग होता है a person who is speaking less, ज्याला आपण मितभाषी असं म्हणतो। ओके, तर he may be laconic and would write only to the point, or he may mix both यानी would use the extensive vocabulary, high phrases, as well as sometimes he would be laconic। ओके, ये तीनों को मिक्स करेगा वो to the requirement for meeting his purposes। अभी यहाँ पे कुछ linguistic devices का भी यूज़ होगा। तो linguistic devices यानी जैसे कि यहाँ पे कुछ figure of speeches हो गए, उनको भी यहाँ पे linguistic devices माना जाता है to make the narrative effective। All these factors decide the texture of the narration। ठीक है, इन्हीं फैक्टर को मिला के यानी एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, ओके, एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, हाई फ्रेजेस, उसके बाद में लैकोनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग और साथ ही में कुछ लिंग्विस्टिक फीचर्स हो गए, इन सब को मिला के क्या बनता है? द टेक्सचर, ओके, ऑफ द नरेशन, create an impact on the readers। ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। अभी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल ये यहाँ पे है, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल क्या है यहाँ पे? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल किसे कहा जाता है? ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ्रेज़ जो है इट वाज कॉइंड, यानी इसका सबसे पहले इसका जो नाम लिया गया, सबसे पहले इसको इन्वेंट किया वो है विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने क्या किया? उनकी एक किताब है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी करके उनकी किताब है। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ों को सबसे पहले रखा वहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसका मीनिंग क्या होता है? अभी इसका मीनिंग जो है वो है कि द फ्लो ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ थॉट्स कैसे? तो क्या होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट के साथ में जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं इनके बारे में हमें धीरे धीरे पता चलता है। जैसे हमारे माइंड में कुछ यादें आती है, पुरानी यादें आती है, यादों के साथ में दूसरी और चीज़ें, सम लिंक्ड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। इसी तरह से द वे दिस थिंग्स कम टू द माइंड ऑफ द राइटर, वो उनको जैसे के वैसे वहाँ पे रखते जाता है। सो इंसिडेंट्स इन द प्लॉट आर इन द सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंसेस। और नॉवेलिस्ट क्या करता है? इनको नरेट्स, ही गोज ऑन नरेटिंग एज दे एंटर द माइंड ऑफ द कैरेक्टर। तो जैसे वो थॉट आते हैं उनको वैसे वो वहाँ पे प्रेजेंट करते जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक जो हमारा नॉवेलिस्ट होता है ये प्रेजेंट कर दिया जाता है। और सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखना कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म जो है इसको
रेफ़र किया गया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में विलियम जेम्स के द्वारा 1890s में। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इट इज़ नॉवेला। अभी नॉवेला क्या है? नॉवेला, ये जो वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉवेला। दिस वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। तो इसके ओरिजिन कहाँ से हुई है? इटालियन वर्ड से हुई है, और वो वर्ड था नॉवेल, NOVELLE। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन, और इसकी खासियत क्या है? शॉर्टर दैन फुल लेंथ नॉवेल, यानी फुल लेंथ नॉवेल जो होती है उससे वो शॉर्ट होती है, लेकिन लॉन्गर दैन द शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, उससे वो लॉन्ग होती है। और दूसरी खासियत इसकी ऐसी है कि यहाँ पे इट इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड, यानी कॉम्बिनेशन उसका स्ट्रिक्ट होता है, अच्छा कॉम्बिनेशन होता है उसका, वेल कनेक्टेड होती है सभी चीज़ें, येट शॉर्ट नरेटिव, ओके, ऑफन सटायरिक और रियलिस्टिक इन टोन। तो यहाँ पे सटायरिक का मीनिंग आपको मैंने बताया था इसके पहले भी, ज्याला आपण उपरोधिक असं म्हणतो, ओके, और रियलिस्टिक इन टोन। इट यूजुअली फोकसेस ऑन वन इंसिडेंट और इशू। यहाँ पे खासियत यह है कि यहाँ पे सिर्फ वन इंसिडेंट के ऊपर या फिर एक ही इशू के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है, और साथ ही में 1 और 2 मेन कैरेक्टर्स, ओके। और प्लेस के बारे में, यानी सेटिंग के बारे में ऐसा है कि यहाँ पे टेक्स प्लेस एट अ सिंगल ट्रेडिशन, ओके, ये उसकी खासियत है। इसके बाद में कुछ फेमस नॉवेलाज दिए हुए हैं यहाँ पे। फेमस नॉवेलाज देखिए यहाँ पे, एक जैसे द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड, ओके, द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, बिली बड बाय हर्मन मेलविल, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पे है और से डेथ ऑफ वेनिस बाय थॉमस मैन, सीज ऑफ डे बाय सॉल बेलो, पर्ल बाय जोसेफ स्टेनबैक, ठीक है। इन तरीके से ये सारी जो फेमस नॉवेला या फिर नॉवेला कहा जाता है इनको, तो ये इनकी खासियत है। दैट इज़ द नोट ऑन नॉवेला। देन इंडियन ट्रेडिशन ऑफ नॉवेल्स, ये वाला अभी लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडियन ट्रेडिशन ऑफ नॉवेल्स, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ पेज नंबर है 174। यहाँ पे द क्रेडिट गोज़ टू द पर्सन हु इज़ द फर्स्ट इंडियन नॉवेलिस्ट, वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उनकी सीरियलाइज्ड एक है द इंडियन फील्ड, ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो यहाँ पे एक नॉवेल आई थी उनकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, उसका नाम था राजमोहन्स वाइफ। ये उनकी फर्स्ट नॉवेल कहा जाती है, यानी एनी विच इज़ रिटन बाय एनी इंडियन नॉवेलिस्ट, द फर्स्ट नॉवेल, ओके, इन इंग्लिश, राजमोहन्स वाइफ, और उसको सीरियलाइज किया गया था द इंडियन फील्ड में, ठीक है। देन यहाँ पे और कुछ है, द पीरियड आफ्टर दैट बाय सम फ्यू मोर नॉवेलिस्ट, और यहाँ पे बेसिकली नाम लिया जाता है जिन्होंने जैसे वर्चूज़, नेशनलिस्टिक वर्चूज़ को उन्होंने हाईलाइट किया, सोशल इश्यूज़ को उन्होंने हाईलाइट किया। और इसके बाद में जो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो खास करके लोग जो आए यहाँ पे, जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, वो थे यहाँ पे मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद का एक मैंने आपको स्पेशलिटी बताया था कि मुल्कराज आनंद हैज़ रिटन अबाउट द पुअर क्लासेस फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। इनको भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। इसके बाद में आर के नारायण, राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, तो ये उनका नाम था। तो आर के नारायण, मालगुडी डेज वगैरह उनके नॉवेल बहुत ज़्यादा जैसे फेमस है।
और उन्होंने भी इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा राइटिंग करे है। उनकी एक हमारे टेक्स्ट बुक में भी हमारी इसमें पढ़ाई के लिए इस साल एक उनकी एक लेसन है जो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरी रिटन बाय हिम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ये पहला ही सेक्शन 1 में पहला ही लेसन है हमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने राइटिंग करी हुई है। इसके बाद में राजा राव का नाम आता है। राजा राव वाज आल्सो अ फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट, ठीक है। तो राजा राव जो है उनकी डेथ करीबन 2007 या 8 को हुई है, और वो भी एक ग्रेट राइटर थे। ही हैज़ बीन अवार्डेड विथ पद्म भूषण, पद्म विभूषण काइंड ऑफ अवार्ड्स, ओके। और दे वेर द ग्रेट राइटर्स फ्रॉम इंडियन सिनेरियो। इसके बाद में यहाँ पे आगे दे प्रिवेल्ड इन द पीरियड आफ्टर दैट। उसके बाद में फिर और कुछ वहाँ पे है, जैसे कि अनीता देसाई हो गई, नयनतारा सहगल, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। शी इज़ सेकंड डॉटर ऑफ विजया लक्ष्मी पंडित, और विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू की सिस्टर थी। तो उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा राइटिंग वर्क किया हुआ है। 1986 में नयनतारा सहगल को साहित्य अकादमी का लिटरेचर अवार्ड उनको मिला हुआ है। उसके बाद में अरुण जोशी है वहाँ पे, मनोहर मालगांवकर है। ऑल दोज पीपल दे हैव चेंज द करंट ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल, ओके। उसके बाद में फिर यहाँ पे अमिताभ घोष है, यहाँ पे विक्रम सेठ है, उपमन्यु चैटर्जी हो गए। All these people they have ameliorated यानी decorated the Indian novel in English by adding new features to it। उसके बाद में यहाँ पे और से बोल रहे कि here the dazzling performance है ना, यहाँ पे the dazzling performance by Indian novelists like सलमान रश्दी हो गए। इसके बाद में अरविंद आदिगा हो गए। उसके बाद में अरुणधति रॉय, किरण देसाई, किरण नगरकर हो गए। ऑल दिस पीपल दे हैव फॉलोड द इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। इन दिस वे ही इज सेइंग दैट इंग्लिश नॉवेल हैज़ अंडरगॉन अ वाइटल चेंज सिंस इट्स बर्थ एंड हैज़ अनडाउटेडली वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो ये सभी बातें जो है वो आपको यहाँ पे एक इंडियन कंटेक्स्ट जो है, इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, इस टॉपिक में आपको ये सारी जानकारी देनी है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड।